you guys feel? Feel exhausted at the moment, but currently we feel exhausted, but overall is very joyful. yeah, and we have to be enthusiastic because the night is not over, the night is still there. And Bit sad that our very closest brother friend got married and is no more a bachelor. So that's a kind of a thing. we cannot be as crazy as we could be, but could be. The couples will be crazier, I hope, and I hope they have a great married life. And now, from now onwards, we'll always have a plus one with him. That's the sad part. Yeah, bro, seriously. Kasam se. But I don't think that would be a case for a long period of time. Soon all of us are going to get into the same situation, getting No, married. not me, bro. Huh. Talk about Other than yourself. all two of you. Talk about yourselves. Don't include me in your plan. Yeah, that's about it. So how long you guys know Fennel for? So I know Fennel from around 2005 or 6. So we've been together, me, Shubham and Meet. So we know Fennel, we used to hang out a lot, but now he has shifted to a different city. So now we don't meet that often, but yeah, The bond is still there. I'd like to add up. So, I'm 22 years old, and me and Fanil have a friendship for almost 16-17 years. And he was probably one of the oldest friend that I ever made. Like, I met him very early in my life when I was like 4 or 5 years old. And I vaguely remember when his father used to get him some cool stuff from China. एंड आई थॉट यार ये बंदे से दोस्ती करने में बहुत फ़ायदा है क्योंकि फैंसी जापान से चाइना से चीज़ें आ रही है, इस बंदे से दोस्ती करनी पड़ेगी. एंड एवर सिंस देन ever since he moved into my building, and he used to live in 601 and I used to live in 602, I'm sorry, and I used to live in 501. So we were just like, ऐसा ही समझ लो ऊपर नीचे घर था, and we were like brothers ever since. And he have been with me through all my times. He considered me as his youngest brother, and he taught me through life the phases that he had already gone through. And when I was going through that phase, then he could like give me the perfect mentorship that was required. And as stupid, as immature my life problems would be back then, he would understand that and would not laugh on it, because the age gap is pretty much different. But I'm really glad that he came into my life, and his existence matter more than anything to me. So I know him since I guess from around 8 to 10 years. I'm a friend of Aditya, and he introduced me to Fennel. So I was kind of overjoyed to meet him. I've never seen a personality which is so kind of humongous when it comes to energy. So काफ़ी लोगों को हम मिलते हैं, तो मैं पर्सनली एक बहुत सटल नेचर का पर्सन हूँ, तो मेरी हमेशा बात करने का तरीका बहुत शांत होगा. बट जब उससे मिलता हूँ तो इट इज़ सो जॉयफुल. वो हमेशा एकदम पावर पैकेज के साथ मिलता है. सो दैट इज़ द बेस्ट थिंग दैट आई हैव कम अक्रॉस. So tell us something funny about Fennel that you remember. अरे नहीं यार, सबसे ये जनहित में जारी प्रॉब्लम है सबके लिए, पूरा मेहताज के लिए, उसके नए दोस्त, पुराने दोस्त, जितने भी दोस्त हैं, सबके लिए एक ही प्रॉब्लम है, उसका कॉन्स्टिपेशन. हम कहीं भी जाएंगे, अरे भाई 2 मिनट रुक, वॉशरूम जाना है, किधर भी नहीं है, वो दर्द है भाई. हाँ, तो हमारे लिए तो उसके वही साथ funny. साथ अपना दर्द है, उसका वो पेट हमारा का दर्द है, वो हमारा जो सर फनी. दर्द है. हाँ, वो कहीं भी जाओ आप यहाँ से 10 मिनट भी ड्राइव कर लो, उसको बीच में कहीं ना कहीं तो जाना ही होता है. What's the funniest thing? वो कुछ जोक्स मारता है? वो मारने की ट्राई बहुत करता है. होता नहीं है हमारे भाई से. बट ठीक है, बट हमारे साथ रह के इवेंचुअली अच्छा हो गया. फिर उसने आयुषी को पटा ली, बिकॉज ऑब्वियसली सब स्किल्स तो अपने ही थे, मतलब स्किल्स हमारे थे. So tell us, like, when did he and how did he told you guys about Ayushi? तो hold on. जनरली मतलब गाइस का बिहेवियर होता है कि अरे भाई मेरी ये देख, ये वाली बंदी है, ऐसा मैं बात कर रहा हूँ, तो हमको उसका थोड़ा पिछले का मालूम था, बट तो हमारा कमेंट सब पिछले मुद्दे मत खुले रहो, तुम पिछले आप छोड़ो. तो हमें वो सब मालूम है, तो हम लोग डिस्कस करते थे, भाई ये देख ऐसा नहीं चलेगा, वैसा नहीं चलेगा. बट ये जब आयुषी आई तो फेनिल ने सोचा रहेगा ये तो हर चीज़ में ना ही बोल रहे,
ये मैं ट्राई कर लेता हूँ. तो वो आयुषी के साथ बहुत मतलब था. थोड़े ड्यूरेशन के बाद हमें पता चला कि भाई देखो ये आयुषी है, अब यही है ऐसा. अभी कुछ नहीं हो सकता, अभी यही है. अगर तुम भी कर लो जैसी एक्सेप्ट. है मेरी है बस. अभी तुम्हें एक्सेप्ट करना है, तुम्हें जो करना है. एंड बट ऑनेस्टली लाइक व्हेन वी मेट आयुषी, she also had a very jolly and very sweet personality. She always takes care of the people that are around her. भाई इंटरव्यू वो भी देखेगी भाई. तो थोड़ा बहुत चलता. No, but seriously, so I was really happy for him, and the day he make me met Ayushi, I realized that this is what, you know, there could be no one. Yeah, we obviously we had to accept, but there could be no other girl that would have been better for him other than Ayushi. And हम आयुषी और हम भी like we are just like friends, you know, because हम पार्टी साथ में करते हैं. We do all the crazy things together. सुबह कहाँ होते हैं, कैसी हालत में होते हैं, वो सब हमारे we know. तो you know, every party, any party we go through, any outing we go to, Ayushi has always been there for the last 4-5 years. तो it's like now the bond is with both of them, and I'm happy that now she is in our home. I will consider it my home. So she is in the house, and I'm really happy for that. Any future messages for them? हाँ, आयुषी घूंघट उड़ के रहना पूरे टाइम घर में. संस्कारी बहू बनना, और जो वचन में तुमने वो क्या बोले अस्तु अस्तु किया था उस पर कायम रहना. हमारे बब्बू को परेशान मत करना, बब्बू का ध्यान रखना. बहुत सीधा है, गाय है हमारी बब्बू. तो उनका प्लीज़ आप ध्यान रखना. एंड खुश रहना. जो भी डिफरेंसेस अगर आए लाइफ में, जो आते ही है, नोक जोक होती रहती है, तो उसे कम्युनिकेशन से सॉल्व करना. दूसरों की बातों में मत आना. दो जन की फाइट्स हाँ, हम सॉल्व नहीं, हम वी ऑलवेज वांट द बेस्ट फॉर बोथ ऑफ देम, और एटलीस्ट फॉर हिम. तो बट जो भी हो, टॉक, कम्युनिकेट, सॉल्व इट. एंड रात को झगड़ा होके या गुस्से में मत सोना. सॉल्व इट बिफोर यू स्लीप. ये तो ज़्यादा हो गया ना थोड़ा. हाँ ठीक है. Good advice. Just say their hashtag together. ओके द करी. ओके. 1, 2, 3. क्रेजी AF. क्रेजी. ओके वापस करते हैं. सिंग 3 times और 1 time. सही है. 1, 2, 3. Crazy AF. Crazy AF. Crazy AF. So about Ayushi, I don't know. Like there are so many things I can't even express what do I feel about her. She's the sweetest girl I've ever met. Like my bestest friend. There was a time where we didn't want to see each other because we hated each other so much during our school times. And when we first met, तो it was like भाई तू कहाँ से आया. दोनों एक दूसरे को तू क्यों इधर है. और हम लोग एक पार्टी में मिले थे, तो वहाँ पे हम लोग तू ये पार्टी में क्या कर रहा है, और मैं उसको पूछ रहा हूँ तू ये पार्टी में क्या कर रही है. तो and from that point a friendship started, and now we are holding glasses to Aishi's wedding, and oh my god, it's such a different feeling. I can't express. Oh my god. Okay, so me and Ayushi are childhood friends. Like me, Dhwani and Ayushi, we are trio, like Samaj, like same Samaj ka we are friends. So we have so much of memories, like we go on Jatra also, so we just do only bitching and gossips and bitching and gossip. That's it. We don't do anything else. So yeah, I mean, super classic Ayushi. Like she used to talk a lot, and she's never on time. Wherever we go, she is always late, always. Yeah. But I know, right? But but still, we all love her a lot. I mean, she is always standing by our side whenever we need it. So yeah, we just love her.
बोल के ख़त्म करो। मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। गुजराती में बोलूँ ना, हिंदी में बोल रहा था। आयुषी और मेरा बॉन्ड ऐसा है कि हम लोग ज़्यादा बात नहीं करते, कुछ नहीं, जब मिले तब एकदम अच्छे से रहेंगे। उसका जिधर का भी गुस्सा रहेगा, अगर मैं दिखूंगा सामने, वो मेरे पे ही निकालेगी। फिर बोलती है अरे सॉरी यार, तेरा गुस्सा नहीं था पर मैंने तेरे पे निकाल दिया, तो अभी समझ लेना। मैं बोला ठीक है, जान दो। अभी भी किधर का भी गुस्सा, किसका भी तो मेरा कोई सीन भी नहीं उसके अंदर, तो भी वो मेरे पे निकालेगी। बाद में बोलेगी अरे यार मैं ठीक है चलो जान दो। तो ऐसा बॉन्ड बहुत मतलब नेक्स्ट लेवल, हर चीज़ को समझाना, उसका करना नेक्स्ट लेवल है उसका। तो आयुषी और मेरा बॉन्ड बहुत ही अलग है, जो कोई शेयर नहीं करता है। ये हो गया मेरा, हो गया। Okay, so Ayushi, my bond with Ayushi, it's like she's always been an elder sister to me. She scolds me every time, she scolds me every now and then, but still we have those, if you're alright, I'll be alright kind of bond together. And I'll just say a part of me is always with her and a part of her is always with me, and today I'm giving that part of myself to Fenty and it's very cute. Yes. That's So sweet. The way she says chutia is very, very sexy. So me and Ayushi, we are college friends, okay? And she was my junior. So I don't remember how we met, but after that we started talking. And we used to bitch about everyone. We used to do gossips. We used to bitch everybody every day. And she has saved my name also, gossip partner. And then always we used to go to parties. We used to create things that अभी gossip कैसे जमा करने का, कि इसको कुछ बोलते हैं, उसको कुछ बोलते हैं, तो ऐसा करते थे। और फिर बाद में उसको काम वो खुद करती नहीं थी, खुद का कॉलेज का काम तो मेरे से करवाती थी। तो मैं उसके घर पे जाके उसको बना के देता था। और आज शादी कर रही है, हो गया भाई तेरा। I met her like as my wife's friend, and now she is one of my best friend, and I just want to say have a happy married life. Whoa. First of all, a very congratulations to you, Ayushi. Ayushi and I share a bond of around 6 to 7 years of friendship. And though we have hanged out less, we have partied less, but we share a good friendship and we have a sense of understanding. And I hope to continue the same and wish you all the best. आयुषी और मैं डिज़ाइनर्स फ्रेंड्स हैं। वो मुझसे डिज़ाइनिंग में हेल्प मांगती थी एंड ऑल, हम लोग ने साथ में एक प्रोजेक्ट किया है, तो उससे हमारी फ्रेंडशिप बहुत बढ़ी। फिर उसका एक चीज़ है, वो हर चीज़ कॉन्सेप्ट को लेके चलती है, उसको हर चीज़ प्री प्लान चाहिए, उसके हिसाब से ही उसको चलना होता है हर चीज़ में। तो वो चीज़ उसकी पॉइंट अच्छी है, बट एट द टाइम वो इरिटेट भी करती है बहुत चीज़, वो चीज़ को लेके। और फन है बहुत, अंडरस्टैंडिंग है। हमेशा उसको जब काम रहेगा तो तुरंत फ़ोन करेगी, जब मैं काम कुछ के लिए फ़ोन करूँगा तो फ़ोन नहीं उठाएगी। वो ऐसे ही करती है हमेशा। जब मेरे को कुछ अर्जेंट काम है, मेरे को एक काम देगी, बाद में मैं उस पर काम कर लिया, मैं उसको बोलूँगा ये काम हो गया, लेकिन फ़ोन ही नहीं उठाएगी। बाद में बोलेगा शिट ये अर्जेंट है, अर्जेंट है, अर्जेंट है, ऐसे करके टांग देती है। इधर की ब्रो अरे कंटिन्यू ब्रो नहीं सो मी एंड आयुषी हम लोग 3-3.5 साल से दोस्त है, बट अगेन मैं तो 1.5-2 साल नहीं था, आई वाज़न्ट इन टाउन इटसेल्फ, बट स्टिल वी हैव दैट बॉन्ड एंड वी हैव दैट कनेक्शन दैट वी ज्वेल अ लॉट एंड वी आर प्रीटी मच क्लोज ऑल्सो। सो लेटली मुझे ये भी चीज़ें मालूम पड़ी है कि शी डोंट रिप्लाई पीपल, शी डोंट टेक्स्ट बैक और शी डोंट पिक अप द कॉल्स, बट दैट नेवर हैपेंस विथ मी, सो आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट प्रोबेबली। हाँ मेरे साथ तो नहीं है यार, so that's what I'm saying, that's a really good thing for me also.
And yeah, that's it. Happy married life. So, the only complaint Ayushi has is, Jinani, તું મને ભાઈંદર કેમ મળવા નથી આવતી? She complained. She complains a lot કે ભાઈંદર આવો, પ્લીઝ મને મારા I love you ના મેસેજના રિપ્લાય કર. Show me that love. So, yeah, ઠીક છે, હવે તું અંધેરી આવીશ તો હું પાક્કો આવી જઈશ ત્યાં સુધી. So me and Ayushi are like together from childhood. बचपन से साथ में है स्कूल लाइक शी इज़ माई सेवियर फॉर ईच एंड एवरी टास्क. बचपन से लेके लाइक 10th तक वी वर टू क्लोज टू ईच अदर इनसेपरेबल. आई एम अ वेरी इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ अ पर्सन. सो स्कूल में भी लोग मेरे को पहचानते थे आयुषी की फ्रेंड है ऐसे. सो शी इज़ लाइक रियली वेरी क्लोज टू मी दो वी डोंट मीट ईच अदर लाइक वेरी ऑफ्टन. बट अभी भी हमारा बॉन्ड कैसा है कि वन शी कॉल्स आई एम देयर फॉर हर एंड I call, she is there for me. But एक बात तो है, she never picks up the call on time. Ever. उसका कॉल कभी नहीं उठाएगी एक बार में वो. So, I just love you, Ayushi. I still cannot believe that she's getting married in some few hours. Sweet. मेरा वाकई है. बोलो. जवान है ना ये? ना नहीं कुछ नहीं. Okay. So everyone are complaining regarding कि भाई मेरा फ़ोन नहीं उठाते. मेरे साथ तो ऐसा कभी हुआ नहीं. फ़ोन कभी नहीं उठाती तो भाई टेक्स्ट तो कर ही देती है कि आई विल कॉल यू वगैरह वगैरह. सो हमारी मुलाकात कुछ 7 to 8 years बैक हुई थी while entering into college. So she always found me very rude, very rude. She never wanted to talk to me and neither so do I. Like even मेरे को कुछ इंटरेस्ट नहीं था उसमें. But somehow I don't know, destinies I guess. She even saved my number as Rudy. Like she still found me rude. Like last night also we fought and today she's getting married. Like in same room we fought and we hugged each other, we kissed each other. So yeah, it's like that. Yeah, and I'm so happy, so happy for her. And I still can't believe that she's getting married. I know. I still can't believe it. Like she's still, kid to us. She's still kid. Like she always cries, cranky. She irritates, literally irritates. नहीं ये कर नहीं ये कर ही भाई चाहिए मतलब चाहिए. Just imagine how the wedding is going on. उसके भाई हमने पूरी दिन रात मेहनत कर के ये पूरा वेडिंग ऐसा सक्सेस हुआ है हमारा शायद. और तो भाई बस मन हाँ बोलना है. थोड़ा जोर से. तेज बोलूँ इससे અહીંયાથી બોલા. नहीं. I don't know I should speak or not, but if I don't, she's gonna kill me. So here's for you. We are childhood friends, and she's a younger sister to me. As she has a single child, she has always considered me as her elder sister. But to me, she's my elder sister because she has pushed me through a lot. She has been through my all bad phases, and I wasn't too much introvert person. Cause of her, I'm so much extrovert and I'm here cause of her. I can say that. But yeah, she doesn't pick up the call, but she's always available on time. There's never been a time that not on time. Whenever required. She has always been there, rather for anything. We share a great bond. I hope it's going to be forever. Thank you. Love you. Yay. So Ayushi is my support system. So whenever I am in trouble, so I talk with her and every time she guides me. Yeah, she guides me and she is very amazing person and she is my Chalia Vada Pav partner. Okay. Yeah, I'm not crying.
एक लास्ट में बोलूँगा खाली कंप्लेंट करवानी। सो मैं और आयुषी बचपन के फ्रेंड्स हैं। मैं उसको बहुत परेशान करता था, इवन उसके बर्थडे पे भी उसको मैंने रुलाया था मस्ती मस्ती में। सो ऐसा कुछ था नहीं कि रुलाने जैसा, पर वो मस्ती मस्ती में कुछ ज़्यादा हो गया और वो रोने लग गई। बट ठीक है, आज भी हम अच्छे फ्रेंड्स हैं एंड आज हमें यकीन भी नहीं हो रहा है कि उसकी शादी हो रही है। बस हम उसको बोलना चाहेंगे, बी हैप्पी, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू एंड वी लव यू आयुषी, हैप्पी मैरिड लाइफ। फन भी बोलना, उसकी दारू की स्टोरीज तो बताओ भाई। हाँ सिर्फ अच्छा ही बोला भाई, कुछ खराब नहीं बोला। उसकी एक कंप्लेंट ये है, मैंने उसको बोला था अरे नहीं भाई, उसकी एक कंप्लेंट ये है, जब भी उसको कोई बोला ना तो ये दोस्त से फ्रेंडशिप करवा। उसकी एक कंप्लेंट ये है, जब भी अपन उसको बोलेंगे ना तो मेरे को ये दोस्त से फ्रेंडशिप करवा, तो बोलेगी नहीं नहीं छोड़ जान दे, अभी नहीं, अच्छी नहीं है, जो बाद में कोई दूसरी देखेंगे। और उसको मैंने बोला था, जब भी पूछा था उसका शादी का लिस्ट प्रिपरेशन हो रहा था ना, तो मैंने उसको पूछा कौन सी लड़की तेरी सिंगल है इसमें से, तो बोलती कोई भी सिंगल नहीं, सब मैरिड है, कोई इसका फिक्स है, किसका गोद दाना हुआ है, एंगेजमेंट हो चुके हैं, उसको लेके आए। तो मतलब उसका क्या मतलब, दोस्त माना है, सब कुछ माना है, तो कोई लड़की तो लेके आ, दोस्त तो कब तक ऐसे सिंगल रहेगा तेरा, किसको लेके तो आ साथ में, ईगो पे लग गया भाई। इधर की डेस्टिनेशन वेडिंग को बोलता है कि तूने गाँव में शादी किया है। जब भी उसने ना हम लोग बात करते तो प्री वेडिंग का कुछ शूट का बात निकला था, तो मैंने इसको पूछा कि शादी तो यार जोधपुर में गांव में हम लोग क्या करेंगे, तो गांव में ना तो आना ही मत, जबरदस्ती तू उस दिन इतना चिड़ी थी मेरे से, बात ही नहीं किया था एक दिन, बोला तू गांव में ही जाए। भाई व्हाट्सएप पे कभी हाय के आगे मैसेज नहीं आता है, उसको उसका अभी मेरे को हाय मैसेज आया, मैं वन में हाँ HYY, और उसके बाद मैंने 1 मिनट बाद रिप्लाई किया कि हाय, तो उसके 3 दिन बाद मैसेज आएगा व्हाट्सएप। वैसा कभी मैसेज कर दिया कर यार टाइम पे। आई एग्री। एनीवन? अगर वो कुछ बोल रही हो और अगर उसको बीच में इंटरप्ट कर लिया फॉर एग्जांपल, तो वो भूल जाएगी कि वो क्या बोल रही थी और फिर उसको 2 दिन बाद याद आएगा, फिर मैसेज करेगी, कुछ नहीं, बट उस दिन मैं भूल गई। कुछ नहीं, फर्स्ट टाइम उसको हुक्का पिलाने तो मैं ही लेकर गया था, तो उसको मैंने बोला कि भाई मैंने उसके फ़ोन के ऊपर हुक्के का स्मोक छोड़ा, तो मैंने बोला कि भाई तेरे अब फ़ोन में से रात को हुक्के का धुआं निकलेगा, तो मुझे बोलते तीर तू पागल है क्या, मेरे पापा मुझे मारेंगे। तो भाई ऐसा नहीं है, बस वही था, फन था, दैट्स ऑल। और यशु भी थी वहाँ पे, वो भी वही टेंशन में आ गई रात को धुआं ना निकले फ़ोन में से। so like छोटू बहुत छोटे थे। Okay guys, let's sing. We gonna sing a song for her. तुम जैसे चूती हो? तुम जैसे चूती। यारों ने तेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, 100 बार शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया। तुम जैसे चूतियों का सहारा है दोस्तों, तुम जैसे चूतियों का सहारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। ये हैप्पी मैरिड लाइफ। बेवड़ों वाली लाइन नहीं आई, सबसे बड़ी बेवड़ी है हमारे ग्रुप की। सबसे बड़ी बेवड़ी, उसकी क्या कैपेसिटी है, क्या कैपेसिटी है, वो कभी हाँ, और वो एक भी पार्टी में सबसे पहली बंदी वो कभी नहीं सोई, सबसे लास्ट सोने वाली वो बंदी है, सबसे लास्ट। चुप पे बैठ, तू दारू नहीं पीते। हाँ इसीलिए। इसको खाली दुआ ही चल रहा है। Okay guys, thank you. Just give a message. Happy married life. She looks so
Okay. अरे गाना नहीं है. कुछ भी अगर Congratulations, Ayushi. Chakala wakala, chakala wakala.